बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फिज़िक्स में खुश आमदीद। जनरल फिज़िक्स में आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन क्या है और फ्रिक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है और एग्जांपल्स क्या है फ्रिक्शन की, और इस तरह की फ्रिक्शन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करनी है, लेकिन इनको एक्सप्लेन करने से पहले हम एक छोटा सा क्लिप देखते हैं और क्लिप देखने के बाद हम फिर इनको एक्सप्लेन करते हैं। आइए क्लिप की तरफ। Hey guys, today we'll learn about friction. Let's start learning about friction. Rewind back, zoop. When you were sliding, two objects were rubbing against each other, the slide and your body. A force occurred due to this. Friction is a force that holds back the movement of a sliding object. That's it. Friction is just that simple. Let's understand it with some examples. What would happen if you tried to slide across the smooth floor? You probably would move smoothly, right? Let's see one more action. What if you tried to slide across a wooden rough floor? You probably wouldn't move much. Why is it easier to slide on the smooth surface floor than the rough surface floor? The answer is friction. Friction is a force that holds back the movement of any object. In this case, you, my friend. The rougher a surface, the more friction. The smoother a surface, the less friction. Now we know what friction is. Let's learn about types of friction. Rolling friction. Rolling friction occurs when a round surface like a ball or wheel rolls over a surface. Dry friction. Dry friction is a force that opposes the relative lateral motion of two solid surfaces in contact. Dry friction is subdivided into two types. First is kinetic friction between moving surfaces. See how this man is sliding the table while walking? And static friction. It's between non-moving surfaces. Fluid friction. Fluid friction is friction that occurs when objects move across or through a fluid. An example is swimming. Swimmer's body and the surface of the water. Although you normally hear about trying to eliminate or reduce friction, it actually has some important uses. Since friction is a resistance force that prevents or slows down the motion, it is necessary for many applications where you might want to hold items or do things and prevent slipping or sliding. Let's see some important uses of friction in our daily lives. Driving a vehicle on a surface. Walking on the road. Drilling a nail into the wall. Whoop! Sliding on a garden slide. Lighting a matchstick. Now you know that friction is very important in our daily life. It also has some disadvantages. The main disadvantage of friction is that it produces heat in various parts of the machines. Now you know a lot about friction. Stay safe. Bye. तो उम्मीद है कि क्लिप से आपने बहुत कुछ सीखा होगा फ्रिक्शन के बारे में। अब आते हैं, सबसे पहले फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गाड़ी जा रही है या एक गाड़ी स्लाइड हो रही है या एक गाड़ी स्विमिंग कर रही है, तो इन तमाम मोमेंट का जो अपोजिट फोर्स होता है वो क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है? फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस एंड द प्रेसिंग फोर्स, यानी दो मेन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले जो है सरफेस पे डिपेंड करते हैं, क्या यानी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट करते हैं तो इसमें सरफेस क्या है? इसमें सरफेस रफ है या स्मूथ है? अगर स्मूथ है तो
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी, अगर रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। और इस तरह प्रेसिंग फोर्स, फॉर एग्जांपल एक टेबल के ऊपर हम एक और चीज़ रख लेते हैं, उस पे जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं यानी प्रेस करते हैं तो इतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। इस तरह के अगर हम कम प्रेसिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगा। अब फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यह है कि हर चीज़ का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। इस तरह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का भी एक मैक्सिमम वैल्यू है जहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है, यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस तरह ये किस चीज़ पे डिनोट करता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? डिनोटेड बाई एफ एस। अच्छा, ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल जो रिएक्शन होता है, यानी दो बॉडी कांटेक्ट में है, इसके आपस में जो रिएक्शन है या फोर्स है उस पे डिपेंड करते हैं। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के एग्जांपल्स क्या है? नंबर फर्स्ट, अप्लाइंग ब्रेक टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल, यानी कोई गाड़ी जा रही है, वो जब ब्रेक अप्लाई करता है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो गाड़ी रुकेगी, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ख़त्म है तो गाड़ी नहीं रुक सकती। तो विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गाड़ी रुक सकती है। इस तरह जब हम रोड पे जाते हैं, एक रास्ते पे जाते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हम जा सकते हैं। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो हमारा जाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस तरह जब हम कोई नोटबोर्ड पे लिखाई करते हैं, जब हम लिखते हैं अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो पेन लिखाई कर सकता है, अगर नहीं है तो फिर हमारे लिए लिखाई में मुश्किल पेश होगी। इस तरह जब हम कोई नेल यानी मैख दीवार में ठोक देते हैं तो वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से उधर ठहरता है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो डिनोटेड करते हैं एफ एस ए एंड द नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन। अब हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हम डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू बराबर है एफ एस डिवाइडेड बाई आर, यानी फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, या हम एफ एस इस साइड पे लेके आते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आर, तो एफ एस हो जाएगा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एंड आर। ये अक्सर हमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन दिया हो और जो म्यू यानी कोफिशिएंट का जो वैल्यू हो वो भी दिया हो, तो हम फोर्स ऑफ जो है एफ एस यानी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।